Hello students, welcome back to our today's session. We are going to learn how to write a chemical formula. It's a very important concept. So before we start our chapter chemical reactions and equations, let us learn how to write chemical formula of any compound. Okay, so to write a chemical formula of any compound, you have to remember two things. The one, you have to know the symbol and charges of ions, that is cation and anion. Okay, it's very important one. You have to know the symbol and you have to know the charge, that is valency of these cations and anions. Then it makes very easy to write the chemical formula of any compound. So here on the board I have written some of the cations and anions, okay, with their symbol and charge. So please note it down, it will be very helpful for you all. Okay, any compound in the chapter of chemical reactions and equations, you will be able to write chemical formulas very easily. So it's a very basic thing that a class 10 student has to know. Okay, so here I have mentioned cations, which are positive charged one. Any atom, right, which loses electrons, they forms cation, which gains electron, they form anion, right. So let us try to run with sodium. Sodium metals such as sodium, its electronic configuration is 2, 8, 1. So it have one excess electron. So it loses one excess electron and becomes Na plus. Okay, so why they are losing electron? They loses electron to get stable like noble gases. So what are noble gases? Here helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, ये सब noble gases है, right? So ये unreactive gases है क्योंकि इनके outermost shell में complete 8 electrons fill up होते हैं. Any atom or a ion which have 8 electrons in their valence shell are said to be stable. So these they have 8 electrons in their valence shell. मैं एक example के साथ बताता हूँ आपको. नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 10. सो लास्ट शेल, सेकेंड शेल में, इसका लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए वो स्टेबल है. तो every noble gas elements they have 8 electrons in their valence shell, hence they are stable. So every atom, okay, so what they will do, every atom of an element, what they will do, they'll try to lose an electron to become stable like noble gases. So that's the reason why sodium, its atomic number is 11, so it loses one electron, it becomes stable like noble gases. That's the reason why it get plus Na plus, right. In the same way, so we'll write it at potassium K plus. Why? Again it loses one electron, becomes stable like noble gases. That's about metals. I'll take magnesium. So here the charge of magnesium, so in the same way here, so magnesium Mg2 plus, right. So why it gets 2 plus? Why? Because it loses 2 electrons. So its electronic configuration, if you write, it is 2, 8, 2. It have 2 excess electrons again. So it loses and becomes Mg2 plus, it forms a cation. In this way they become stable. So this is for an element of a compound. Okay, ठीक है, that's about cation. Now when we talk about anions here, okay, so we'll talk about anions like chloride, okay, Cl minus, chloride, bromide, okay. So chlorine atomic number is 17, its electronic configuration is 2, 8, 7. It have one less electron, okay. So to get stable like again noble gases, what it will do, it gains one electron and becomes Cl minus. In this way it becomes anion. Is it clear? So why they get positive and negative charges? Is it clear? So by getting their positive and negative charges they become stable. That's in case of simple ions. So here we have polyatomic ions also, like sulfate, carbonate, dichromate, nitride, phosphate, hydroxide, nitrate. Okay, so these are polyatomic ions. So every student has to be perfect with this table, with symbols and with their charges. Hope it is very clear concept. Let us try to learn how to write a chemical formula in a step by step. So first we will learn the steps. What are the steps to be followed while writing a chemical formula? Then we will try to write with the help of example. Now let us look into the steps for writing chemical formulae. So ये steps follow करना चाहिए chemical formula लिखने के लिए. पहला step है
write the symbols of each atom side by side, that is cation first and anion next. पहले cation उसके बाद anion. Second point, symbols लिखने के बाद write their valency, that is charge, at their top of its symbol. सिंबल के टॉप पे लिखना चाहिए. क्या लिखना चाहिए? उनके वैलेंसीज. पहले क्या लिखना चाहिए? You have to write symbols of each atom side by side. First cation, next anion. ठीक है? Then third point, interchange the valency and write their numbers to the lower right side of the constituent. Lower right side में लिखना चाहिए. For example, sodium chloride, sodium and chlorine, cation, anion, side by side. ठीक है? Charge of sodium 1, chlorine 1. ठीक है? Now the next what you need to do, interchange the valency and write the numbers to lower right side of the constituent. This is one constituent and this is other constituent. You have to write their charge on the lower right side. Okay, on the right side you have to write lower right side. Okay, is it clear? Now fourth one, if any constituent receives number 1, if they receive number 1 while writing chemical formula, you can ignore the number. Now it's 1, so I'll ignore it. I'll write a formula NaCl. ठीक है? Now the fifth, if constituent have more than one atom, if they have polyatomic ion like OH, CO3 2 minus, SO4 2 minus, PO4 3 minus, ठीक है, HCO3 माइनस, ये पॉलीएटॉमिक आयन्स है. अगर पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं, ठीक है, सो इफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट रिसीव्स नंबर 1, इग्नोर इट व्हाइल राइटिंग फॉर्मूला. इफ कॉन्स्टिट्यूएंट हैव मोर देन वन एटम, एनक्लोज इट इन ब्रैकेट्स. एक से ज्यादा एटम्स अगर होते हैं पॉलीएटॉमिक आयन के, तो उनको ब्रैकेट्स में एनक्लोज करना चाहिए. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. Now let us learn with few examples how to write chemical formulas. You have to follow these 5 steps. Previously I have written some symbols of some elements with their charges, right? I think it is very clear. You have noted down, right? Now let us try to write formula. Now let's try to learn with some examples. So first example is hydrogen chloride. What is the formula of hydrogen chloride? Let us try to put it down. So you have to follow these 5 steps compulsory. Okay. So पहला स्टेप क्या है? सिंबल ऑफ ईच एटम साइड बाय साइड. हाइड्रोजन का सिंबल, अब मुझे हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है. ठीक है, तो कैसा लिखूं? तो पहले क्या करना चाहिए? स्टेप साइड बाय साइड लिखना चाहिए कैटायन एनियन. सो इसमें कैटायन क्या है स्टूडेंट? हाइड्रोजन. एनियन क्या है? क्लोराइड. ठीक है, तो उसके सिंबल्स लिखना है. ओके, वर्ड फॉर्म में नहीं लिखना है, सिंबल लिखना है. हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड का सिंबल Cl. साइड बाय साइड लिखना है. ओके, सेकेंड स्टेप क्या है? उसके वैलेंसीज लिखना है. हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है स्टूडेंट? 1. ठीक है, क्लोराइड का वैलेंसी क्या है? ऑल्सो 1, -1. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंटरचेंज द वैलेंसी. इनके वैलेंसीज इंटरचेंज करो. क्लोरीन के वैलेंसी हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्लोरीन को. कहां पर रखना है? राइट साइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट साइड पे रखना है. ठीक है, अगर आप ऐसा लिखेंगे Cl, ओके, ऐसा लिखेंगे तो रॉन्ग है ये. ठीक है, अब ये बन गया, इस तरह हो जाएगा. राइट, इट्स रॉन्ग. राइट, यू हैव टू प्लेस दैट चार्ज, ओके, ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट. ओके, द नेक्स्ट, if any constituent receiving number 1, this constituent both are receiving number 1, so you can ignore the number. Now you can write HCl. So the formula of hydrogen chloride is HCl. Is it clear? In the same way, you write it down the formula of hydrogen bromide and hydrogen iodide. ठीक है? Now the next formula, magnesium chloride. So what is the formula of magnesium chloride? Let us try to write now. Now magnesium chloride. Right? Again फिर से वही steps. पहले सिंबल्स, उसके बाद उनके वैलेंसीज, नेक्स्ट क्रिस क्रॉस करो, फॉर्मूला बन गया. वेरी इजी. मैग्नीशियम का सिंबल यस Mg. अगर आपको सिंबल्स याद नहीं रह रहे तो आपको कंपलसरी सिंबल्स याद करना पड़ेगा विद देयर चार्जेस.
then it will be very easy for you to write any compound formula. So magnesium का symbol Mg, क्लोराइड Cl, ठीक है. सो इसका चार्ज क्या है मैग्नीशियम का, +2, क्लोरीन का चार्ज क्या है, -1, ठीक है. तो आप क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, सिंबल्स लिखे, वैलेंस लिखे, देन क्रिस क्रॉस करना है. क्लोरीन का चार्ज मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम का चार्ज क्लोरीन को कहाँ पर रखना है, यस, ऑन द लोअर साइड, ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ द कंस्टिट्यूएंट. ओके, अगर फिर से आप इस तरह लिखते हो Mg1Cl2, it is wrong. Okay, how you have to write, you have to write that number on the lower right side of the constituent. Now its formula is MgCl2, right? If number 1 you can ignore it. So the formula of magnesium chloride is MgCl2. So what is the formula of magnesium iodide, student? Then very simple, magnesium charge 2, iodide charge 1, crisscross it. Okay, 1 and 2, MgI2 बन गया. तो इसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैन यू गेस इट, यस, MgBr2. ओके, होप इट इज वेरी क्लियर. नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट. ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपके चैप्टर्स में रिपीट होते रहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड. तो ओके, तो हाउ टू राइट, सो बार बार आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है. तो पहले क्या लिखना चाहिए, यस, सिंबल्स, कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का सिंबल O2, राइट, साइड बाय साइड लिखना चाहिए, राइट. ये बाहर स्टेप 1. स्टेप 2 में क्या लिखना चाहिए, आपके चार्जेस लिखना चाहिए, राइट. आपको क्या लिखना चाहिए, पहले कैल्शियम ऑक्साइड के सिंबल्स साइड ऑन साइड, नेक्स्ट दे चार्जेस, कैल्शियम का चार्ज 2, ऑक्सीजन का चार्ज 2. आपको डाउट रहा तो प्लीज़ टेबल चेक कीजिएगा. ओके, देन अगेन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू नीड टू डू, क्रॉस द चार्जेस, राइट. ऑक्सीजन का चार्ज कैल्शियम को, कैल्शियम का चार्ज ऑक्सीजन को कहाँ पर रखना है दोबारा, नेक्स्ट टाइम ऑन द राइट साइड, लोअर राइट साइड, ठीक है. Ca2O2, अगर दो भी सेम नंबर्स रहते हैं, अगर ये फैक्टर्स डिवाइड हो सकते हैं तो डिवाइड कीजिएगा सिंपल रेशियोस लाने के लिए, राइट. तो आपका फॉर्मूला बन गया CaO. स्टूडेंट, इज इट क्लियर. सो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaO, राइट. प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, कैल्शियम, O2 माइनस को ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह ये फॉर्मूलाज बने. अब नेक्स्ट फॉर्मूलाज लेंगे, और कोई फॉर्मूलाज आपको, ठीक है. तो मैं थोड़े कंपाउंड्स पुट डाउन करता हूँ. लेट अस ट्राई टू राइट द फॉर्मूला. सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट. सो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अभी फॉर्मूला. सोडियम का सिंबल Na, ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH. सो दोनों का चार्ज 1 है, राइट, ठीक है. मैं यहाँ पे रख देता हूँ. तो फॉर्मूला बन गया NaOH, ठीक है. नाउ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल Na, कार्बोनेट का सिंबल CO3, राइट. सो इसका चार्ज क्या है सोडियम का, 1, कार्बोनेट का चार्ज क्या है, 2. सो कार्बोनेट का चार्ज सोडियम को, सोडियम का चार्ज कार्बोनेट को, तो ये बन गया 1 है, तो इग्नोर कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम. तो फॉर्मूला बन गया Na2CO3, ठीक है. इट्स इजी इनफ, राइट. नेक्स्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है. एल्यूमिनियम Al, इसका चार्ज 3 है, आपको याद रखना है. एल्यूमिनियम का चार्ज 3, सल्फेट का चार्ज 2. सो सल्फेट का सिंबल क्या बना स्टूडेंट, SO4, ठीक है. इसका चार्ज SO4 है, SO4 सिंबल है, तो इसका चार्ज क्या है, 2 है. तो क्या करना चाहिए, सल्फेट का चार्ज एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम का चार्ज सल्फेट को. तो एल्यूमिनियम का चार्ज सल्फेट को, ये पॉली एटॉमिक आयन है. 5th पॉइंट ये कहता है, इफ कॉन्स्टिट्यूएंट हैव मोर देन 1 एटम, इस कॉन्स्टिट्यूएंट में एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके अंदर एक से ज़्यादा एटम्स है,
तो आपको इसको किसके अंदर इनक्लोज करना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना चाहिए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है 3, राइट। सल्फेट का चार्ज 2। तो फॉर्मूला क्या बना स्टूडेंट्स, Al2SO4 टेकन थ्राइस। समझ में आ गया, ठीक है। ओके, वंस अगेन आई विल पुट इट डाउन हियर। एल्यूमिनियम का चार्ज 3, सल्फेट का चार्ज 2, ठीक है। मैं क्रॉस कर रहा हूँ, देखिएगा, सल्फेट का चार्ज एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम का चार्ज सल्फेट को, राइट। तो ये क्या है, इसके अंदर एक से ज़्यादा आइटम्स है, तो मैं इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ, तो बना फॉर्मूला Al2SO4 टेकन थ्राइस, ठीक है। इजी है अभी। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूलाज। कॉपर सल्फेट, ठीक है। सो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, सो कॉपर का सिंबल Cu, सल्फेट का सिंबल SO4। अगेन आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, सल्फेट का सिंबल है SO4, इसका चार्ज है 2। कार्बोनेट का सिंबल है CO3, इसका चार्ज है 2, ठीक है। सो हमेशा स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोक्साइड OH, इसका चार्ज 1। ये 3 कंपाउंड्स आपको हमेशा याद रखना है, ये पॉलीएटॉमिक आयन्स है, इंपॉर्टेंट है। सल्फेट कभी भी अगर कहा जाता है तो सल्फेट वो SO4 2-, कार्बोनेट अगर कहा जाता है तो CO3 2- लिखना चाहिए, राइट। सल्फेट, कॉपर का चार्ज 2 है, सल्फेट का चार्ज 2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, क्रिस क्रॉस करना है 2, एंड ये क्या है बेटा, पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक आयन है तो किस में रखना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर, तो ठीक है, वेरी गुड, ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो इसका क्या रखना चाहिए, चार्ज, राइट। दोनों भी सेम नंबर्स है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपका फॉर्मूला बना CuSO4, वेरी इजी, राइट, ठीक है। नाउ आप वेरी इंपॉर्टेंट वन, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाओ। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का चार्ज 2 है, याद रखो स्टूडेंट्स, बेरियम का चार्ज 2 है, ठीक है। अब बेरियम क्लोराइड का बनाता हूँ। बेरियम का सिंबल क्या है, Ba, ठीक है। Br बन गया ब्रोमीन, Ba बन गया बेरियम। तो बेरियम का सिंबल B है, क्लोराइड का सिंबल Cl है, तो इसका चार्ज क्या है, बेरियम का 2, क्लोराइड का 1। तो नेक्स्ट क्या करना है, यस, ठीक है, धीरे धीरे ऐसा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग फास्ट बन जाओगे। BaCl2, राइट। उसी तरह आप डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्मूलास आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप नेक्स्ट सेशन में विल ट्राई टू लर्न फ्यू मोर फॉर्मूलास, ओके, विथ वेरी इंटरेस्टिंग बेस्ड वे, ओके। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, टेबल को याद कीजिएगा, चार्जेस याद रखिएगा। अगर आप टेबल चार्जेस याद रहे तो आपको फॉर्मूलास बनाना वेरी इजी है, और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर पढ़ना वेरी इजी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यह है आज के लिए। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस class, please do like it, share it and subscribe it, okay. Please press the bell icon to get the latest notification of our videos, okay. Have a good day children, thanks.